Good afternoon to all. I welcome all of you in this session. Please join the class. We are going to start today's topic as CLT, known as Communicative Language Teaching. Communicative language teaching is basically an approach, also known as communicative approach. हम इसे कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से भी जानते हैं. इसे हम शॉर्ट के अंदर CLT नाम से भी जानते हैं. This topic is very important for the REET students who are preparing for REET. First of all, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है दैट इज डेवलप्ड ऑन अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के ऊपर ये डेवलप हुई. इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट. इट्स द कम्युनिकेशन. Communication is the primary objective of any language. So this principle gives emphasis on communication, that language should be learned with the help of communication. CLT, communicative language teaching, is developed from a functional approach, that was developed by Henry Widdowson and Christopher Candling. This approach is developed from a functional approach that was given by Henry Widdowson and Christopher Candling. These were the person who made famous, who made base for this approach. इस अप्रोच के लिए बेस बनाने वाले यही वो दो पर्सन थे. In CLT we mostly use the term communicative competence. Communicative competence. As we have already discussed, communicative competence term was given by Delhaize, and this gives emphasis on the use of language, on the communication. It means language should be learned through communication. We should give emphasis on the communication to learn any language, use of the language. Second one, linguistic competence. Linguistic competence is also part of communicative competence, given by Noam Chomsky. This term was given by Noam Chomsky, and this term, competence gives emphasis on the grammar and on the use of the language, on the correct use of the language. It means this one is a part of communicative competence. We use communicative competence term widely in CLT, in communicative language teaching. So इनके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहले आपको इस अप्रोच का फुल नेम आना चाहिए कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. सेकंड वन, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द कम्युनिकेशन. थर्ड वन, आपको दो टर्म्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म वाज कॉइन्ड बाय Delhaize, and second one, linguistic competence term was coined by Noam Chomsky. We must learn the name of these Delhaize and Noam Chomsky that are related with the communicative competence and linguistic competence. Linguistic competence gives emphasis on the accuracy, कुछ न कुछ शुद्धता पे जोर देता है.
but communicative competence always give emphasis on the communication. Some errors are tolerated in communicative competence, and we as students are promoted to communicate in that language. This one is known as communicative competence. Then we were discussing about some facts about the CLT, that we must learn some facts about that are related to the CLT. CLT से संबंधित कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट इन CLT. So we must communicate in very effective manner because meaning is important. Meaning is, language is meant for communication. So if our language is not able to communicate correct meaning, then it's not correct, it's not good. So meaning matters in CLT, not लैंग्वेज एक्यूरेसी. लैंग्वेज की एक्यूरेसी से ज्यादा इसमें कौन मैटर करता है? मीनिंग मैटर करता है. सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट हम टर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल. कॉम्प्रिहेंसिबल pronunciation. Which type of the pronunciation is emphasized in CLT? Comprehensible pronunciation. इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. Comprehensible pronunciation means such type of the pronunciation that is very easy to understand. Two types of the pronunciation we generally discuss करते हैं हम. First, native speaker like communication, and second is comprehensible pronunciation. बोध गम्य उच्चारण. हमारा उच्चारण ऐसा होना चाहिए जो बोलते ही हमें लिसनर को समझ में आना चाहिए. सेकेंड वन कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन. थर्ड वन एरर्स आर टॉलरेटेड. एरर्स आर टॉलरेटेड. एरर्स आर tolerated means errors are avoided in CLT at primary stages, but in the later stages, बाद की अवस्थाओं के अंदर, when writing comes, जब writing आती है, at that time we should avoid errors, we should avoid mistakes. But in the in the primary stages, errors are tolerated, they are ignored. We ignore general mistakes or errors. Then errors are tolerated. Accuracy doesn't matter. Accuracy doesn't matter, but fluency matters. Always this approach CLT gives emphasis on fluency in language, not on accuracy. Accuracy doesn't matter in this approach. Accuracy, general, as we have discussed, general errors, common mistakes are avoided in this approach. So we always give emphasis on fluency. Our communication should be effective. Our meaning should be very clear from our communication. But if our sentence is somewhat wrong, or we are committing any mistake, कोई भी हम mistake कर रहे हैं या sentence हमारा wrong है, then it doesn't matter. But meaning should be very effective and clear, and our communication should be very effective. Next one, effective communication. Same. It always gives emphasis on effective communication. Our communication should be very effective. Next one, L, S, R, W. All these skills are equally emphasized. Listening, speaking, reading, and writing. All these four
basic skills in any language are equally emphasized in CLT, in communicative language teaching. It means reading and writing comes later. Writing later stage में आती है जिसमें हम common errors को avoid करते हैं, but ये नहीं कह सकते हम कि राइटिंग स्किल को ये डेवलप ही नहीं करती, ये सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग पे ही जोर देती है, ऐसा नहीं है जैसा कि ओरल अप्रोच में होता है. बट दिस अप्रोच CLT equally emphasize all basic skills of the languages: listening, speaking, reading and writing. नेक्स्ट वन इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, judicious use of mother tongue. CLT always allow judicious use of mother tongue. It mean हमारी जो मदर टंग है उसका भी हम न्यायोचित यूज CLT के अंदर कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल प्रोहिबिट नहीं करती मदर टंग के यूज को, जैसा कि डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है जिसमें हमें मदर टंग यूज करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती. बट मदर टंग कैन बी यूज्ड, बट विच टाइप वी कैन यूज मदर टंग, किस तरह से अपने मदर टंग को यूज कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ द यूज ऑफ द मदर टंग शुड बी अडॉप्टेड इन CLT. जुडिशियस यूज, न्यायोचित, बहुत कम मात्रा में, जहां जरूरत है वहीं उसको हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इसमें जो अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, तो इसमें है कि बेसिक जो नीड है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग is to communicate. It means our language learning is basically learn to communicate in any language, because language is meant for communication. Language सिर्फ communication के लिए बनी है. Language के अंदर हम communication ही कर सकते हैं. Without communication, language is useless. So effective communication is the primary need in CLT. तो इस तरह से हमने कुछ ये यूज डिस्कस किए थे. नेक्स्ट वन जो इसमें आता है कि इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट रहता है, रोल ऑफ टीचर. विच टाइप ऑफ द रोल is given to teacher in CLT. Teacher generally remain as facilitator, जिसे अपन बोल सकते हैं मोटिवेटर, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, co-communicator, manager of class. These are the roles which are played by a teacher in CLT. He is facilitator, he facilitates learning to the students. Motivator, he motivates the students to communicate with each other. If they have any problem, then teacher motivate them and solve their problem. Next one, instructor. He gives instruction to communicate about the process of learning. किस तरह से सीखना है, किस तरह से communication करना है, वो टीचर ही डिसाइड करता है. Co-communicator, a student can communicate with a teacher also. Generally, students are encouraged to communicate with each other, but a teacher can also play a part of co-communicator to make interest in that class and to motivate or to encourage the students. Next one, manager of the class. He manages all activities. He supervises all activities
but he doesn't take part actively in the class. He just manages the class, and students are engaged to learn through communication. This one is the role of teacher and students role. इस पे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट का क्या रोल होता है इन CLT. स्टूडेंट्स इन CLT are active co-communicator, student actively take part, they are co-communicator भी हो सकते हैं. तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उसे अपन कह सकते हैं कि मैनेजर ऑफ नेगोशिएशन. Manager of negotiation are students. Teacher is the manager of class. क्लास का मैनेजर टीचर हो सकता है, बट जो नेगोशिएशन है, जो भी बातें चल रही हैं, जो उनमें आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका जो मैनेजर है, उसको जो मैनेज कर रहे हैं, दे आर स्टूडेंट्स. वे एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करके उसे मैनेज करते रहते हैं. तो इस तरह से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम. एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. तो नेक्स्ट वन, इसमें रोल ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल ऑफ द टीचर के बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि होमवर्क. तो होमवर्क किस टाइप का दिया जाता है. होमवर्क और असाइनमेंट is given to students to promote them. उनको प्रमोट करने के लिए किस में प्रमोट करें वो, इन टू प्रमोट देम इन कम्युनिकेशन. होमवर्क भी इस तरह का असाइन होना चाहिए कि वो उसको कम्युनिकेशन में प्रमोट करे. अब इस टाइप का कौन सा होमवर्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिबेट राइटिंग. इन राइटिंग इफ एनी स्टूडेंट ट्राइज टू राइट अ डिबेट लिखने की कोशिश करता है, देन उसको फेवर और उसका अपोजिट दोनों साइड उसमें लिखनी पड़ती है. डिबेट राइटिंग, speech writing, such type of the homework, debate writing, speech writing, dialogue writing, such type of the homework is used mostly in CLT to promote communication, to develop communication skill effectively in the students. मोस्टली जैसे इसका नाम है, ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखती है, ज्यादा एम्फेसाइज कम्युनिकेशन के ऊपर ही करती है. तो इस टाइप का होमवर्क है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है. अब इसमें नेक्स्ट जो है कि हम किस टाइप की एक्यूरेसी जो है वो इसमें मैटर नहीं करती, बट एक्यूरेसी कौन सी स्किल में आएगी, ओनली राइटिंग स्किल के अंदर. और कब, इन लेटर स्टेजेस, बाद की अवस्थाओं में सिंपल राइटिंग स्किल के अंदर ही हम एक्यूरेसी को मैटर करते हैं. बिना एक्यूरेसी के हम बाकी अदर स्किल्स में वर्क कर सकते हैं, बट इन राइटिंग स्किल वी हैव टू अवॉइड आवर मिस्टेक्स, आवर एरर्स, और उसको अपन बिल्कुल लेटर स्टेजेस के अंदर, बाद की स्टेजेस के अंदर डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग के अंदर हम इसे नहीं ले सकते. लेकिन वैसे अपन इसमें ये जरूर लिखते हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे.
reading and writing, because this skill equally emphasize basic skills. चारों skills के ऊपर equally emphasize करती हैं, listening, speaking, reading and writing. तो इसको हम avoid नहीं करना, इसको हम बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तो राइटिंग के अंदर हमारा एक सजेशन रहेगा, हमारा सजेशन इस टाइप से रहेगा कि वो उसके कम्युनिकेशन को बाधित ना करे, बल्कि उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करे सही लिखने के लिए। तो इस टाइप से हम एरर अवॉइड करेंगे, एरर जो बच्चे के ध्यान में लाएंगे और उनको दूर करेंगे कि उससे हमारा कम्युनिकेशन शुड नॉट बी स्टॉप्ड, शुड नॉट बी डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो बल्कि फ्लुएंसी के साथ चलता रहे। नेक्स्ट वन इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज ट्रांसलेशन, रोल ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन may be used if necessary. Translation may be used like grammar translation method, in which we give emphasis on the translation of that language, जिसमें हम ट्रांसलेशन और ग्रामर पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं। लेकिन CLT के अंदर भी हम ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं, CLT के अंदर हम मदर टंग का भी यूज कर सकते हैं, बट मदर टंग एंड ट्रांसलेशन शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। हमें न्यायोचित तरीके से ही यूज करना है ट्रांसलेशन का भी और मदर टंग का। इफ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसलेशन, if the translation is helpful and useful for the students, then teacher should use translation, but in a very limited time, बहुत ही बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए, फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, वो थोड़े समय के लिए हम ट्रांसलेशन और मदर टंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ड्रिलिंग में अकर but peripherally, ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली। इसमें अभ्यास जो आ सकता है, कर सकते हैं, हम ड्रिल दे सकते हैं, बट पेरिफेरली, ऑन द सरफेस, बिल्कुल सतही तौर पे, बिल्कुल हल्के तौर पे हम ड्रिल का यूज कर सकते हैं। CLT never gives emphasis on drill, ड्रिल के ऊपर कभी भी ये एम्फेसाइज नहीं करता, जैसा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच करती है, वो स्ट्रक्चर्स पे एम्फेसाइज करती है, वो स्ट्रक्चर्स लर्निंग पे हमें एम्फेसाइज करती है कि स्ट्रक्चर्स आर द बेसिक फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, with the help of structures we can communicate in that language, but this approach is not based on structure, this one is not based on drill, exercise, practice, but a student are encouraged to communicate in a very effective way, not with the help of rote memory. Structures are never used again and again, are not repeated in this approach. इसमें हमेशा नए नए स्ट्रक्चर्स में टीचर भी इवन इमेजिन नहीं कर सकता कि व्हाट विल बी द आंसर और व्हाट विल बी द कम्युनिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट मे यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। उस सिचुएशन और उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक विद्यार्थी नए नए स्ट्रक्चर का यूज करते हुए इस स्किल को यूज, इस अप्रोच को यूज कर सकता है, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकता है, बट सेम स्ट्रक्चर और रिपीटेड थिंग्स आर नेवर एम्फेसाइज्ड, उनके ऊपर एम्फेसिस नहीं होता। बट इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी कैन यूज, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही यूज नहीं करते। एक्सरसाइज, ड्रिल या जो प्रैक्टिस है, इसको हम लैंग्वेज लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, बट
totally language learning should not be based on drill or exercise. सारी लैंग्वेज लर्निंग एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड नहीं होती. नेक्स्ट वन जो इसमें आता है, ज्यादातर इसमें कम्युनिकेशन के ऊपर ही बल दिया गया है. तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट इन इफेक्टिव वे. तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट इन इफेक्टिव वे. बच्चों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करेंगे. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट in effective way. This one is the role of student, that they are expected to communicate in target language and in a very effective way. In the very effective way means their meaning should be very clear, their pronunciation should be comprehensible. It means listener को सुनते ही बात समझ में आनी चाहिए और उसकी बेस्ट एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि किस तरह से वो अच्छे से अच्छे इस बात को अपनी लैंग्वेज में कह सकता है. तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स को ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं. नेक्स्ट वन, डायलॉग्स आर नॉट मेमोराइज्ड. सेम थिंग पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. डायलॉग्स आर नॉट मेमोराइज्ड इन सीएलटी. डायलॉग्स आर यूज्ड इन अ वेरी इफेक्टिव वे. दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट. उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आवश्यकता अनुसार हम डायलॉग्स का यूज करते हैं. एंड स्टूडेंट्स यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायलॉग. नॉट ड्रिलिंग, नॉट memorized dialogues are used by the students. Students learn or memorize structure in structural approach. Structural approach में structure को वो learn करता है. But इसमें क्या होता है कि dialogues are used in a very effective way. Students change their dialogues and according to the situation they use their dialogues. So dialogues center around the communicative function but not memorized. Memorized नहीं होते. इसके लिए भी हम इसमें ये नहीं कहते कि डायलॉग्स जो है उसको अपने मेमोरी में याद रखना है. नेक्स्ट वन, एक इसमें आता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज क्रिएटेड with the help of interest, and interest is created through communication. When students are able to communicate with each other, it means they are very confident, they become very interested. उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं किसी लैंग्वेज में. एंड दिस इंटरेस्ट इज यूजफुल टू क्रिएट इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंटरेस्ट से उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनता है. इंट्रिंसिक, टू टाइप्स ऑफ द मोटिवेशंस आर यूज्ड इन टीचिंग. टीचिंग में हम दो तरह के मोटिवेशन की बात करते हैं, एक इंट्रिंसिक, सेकंड वन एक्सट्रिंसिक. Extrinsic motivation and intrinsic motivation. Intrinsic motivation is created within a student. वो एक स्टूडेंट के अंदर से जो उत्पन्न होने वाला, स्वयं अपने आप से जो मोटिवेट होता है, that is known as intrinsic motivation. Extrinsic motivation means if a teacher motivates a student, if any situation motivates a student, कोई भी दूसरा यदि उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, that motivation is known as extrinsic. But if student self is
मोटिवेटेड, खुद अपने आप ही मोटिवेट होता है वो, तो उसे अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन is more effective than extrinsic motivation, and intrinsic motivation is created with the success of our objective। या तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो जाएं, जो हम काम कर रहे हैं उस काम करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी हमें मिलती है, उसी से हम इंटरेस्टेड होके इंट्रिंसिक मोटिवेट हो जाते हैं। और जब वो अपने कम्युनिकेट, लैंग्वेज का मकसद ही कम्युनिकेशन है, और जब हम कम्युनिकेशन में सक्सेस हो जाते हैं, इफ वी आर एबल टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज इन अ वेरी इफेक्टिव वे, इट मीन बिल्कुल हम मोटिवेटेड होंगे, और वो भी इंट्रिंसिकली। और इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे तब हमारी लैंग्वेज लर्निंग जो है बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है कि कुछ डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। तो इसमें वो यूज करते हैं अनस्क्रैम्बल्ड sentences, role playing, unscrambled sentences। नेक्स्ट इसमें एक यूज करते हैं हम स्किल पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी। पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी, रोल प्लेइंग, unscrambled sentences, these are some skills which should be used in classroom to promote communication. These skills are used to promote communication. Communication को promote करने के लिए हम इन skills का use करते हैं। First of all, unscrambled sentences. What do you mean by unscrambled sentences? Sometimes a student is given to arrange sentences in an order. एक order के अंदर sentences को arrange करना देते हैं। वो sentences story based हो सकते हैं, dialogue based हो सकते हैं कि कौन सा dialogue पहले आएगा, उसके बाद में कौन सा dialogue आएगा। जब वो student उसको rearrange करता है या उसको order के अंदर सही लगाता है, तो उस एक्टिविटी को हम जानते हैं अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस एक्टिविटी के नेम से। तो इसमें हम ये ध्यान रखें कि अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस आर गिवन टू प्रमोट कम्युनिकेशन। रोल प्लेइंग, different types of the roles can be played by the students, and this role playing activity also enables the students to communicate, to promote the student to communicate। कम्युनिकेट करने के लिए रोल प्लेइंग में भी किसी एक स्टूडेंट को हम डॉक्टर का रोल दे रहे हैं, किसी को एक पेशेंट का रोल दे रहे हैं। इट मीन कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट इज प्रमोटेड थ्रू दिस एक्टिविटी। So such type of the activity, role playing, picture strip story, with the help of a story, with the help of some pictures develop a story। एक स्टोरी को डेवलप करना पिक्चर्स की हेल्प से, एक स्टोरी को डिफाइन करना, that is known as picture strip story। And with the help of this picture strip story, students are encouraged to imagine about the dialogues of these characters। And if they are imagined to the dialogues of the characters, then they are motivated to communicate। They are they become very interested, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बन जाते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन के लिए। तो these are some skills which a teacher should use in classroom। क्लासरूम के अंदर हमें यूज करनी चाहिए इन स्किल्स के द्वारा, और हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इसमें जो अपन प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल, लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय students
through trial and error method. Language is learned by students through trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स हम ट्राई करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, प्रयास और जो जिसे अपन बोलते हैं प्रयास और भूल विधि जो है, प्रयत्न और भूल विधि जो है, तो इसके अंदर क्या है, इफ अ स्टूडेंट ट्राई टू कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज देन ही मेक्स सम मिस्टेक्स, but these mistakes are avoided in the primary stages, then student is encouraged to use more to communicate in that language more effectively, ज्यादा effectively उसमें communicate करे, he is motivated to communicate again and again, and if he tries to communicate in that language then these errors are avoided in later stages and a student learn that language completely. इसके अंदर यही फोकस रहता है कि स्टूडेंट लर्न्स लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की हेल्प से ही इसमें टोटल जो लैंग्वेज लर्निंग है वो डिपेंड करती है। इसके बाद इसमें जो है एरर और जो ट्रायल मेथड से सीखने के बाद तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड to interact with other people. First of all, students are motivated to interact with each other, then they are expected to interact with other people. किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हम बात करने के लिए बाद की स्टेज के अंदर ऐसा अपेक्षा हम विद्यार्थियों से करते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल बेसिक जो अपने फैक्ट है वो हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर काम करना चाहिए। इसमें एक और भी है कि लैंग्वेज वेरिएशन, लैंग्वेज वेरिएशन is central concept in teaching methods, methodology लिख देते हैं। Language variation is central concept in methodology and material भी लिख सकते हैं, and material, methodology और material के अंदर language variation, अगेन उसी बात को रिपीट कर रहा है कि डायलॉग्स आर नॉट मेमोराइज्ड इन CLT, लैंग्वेज वेरिएशन इट मीन स्टूडेंट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायलॉग्स, स्टूडेंट कम्युनिकेट इन अ वेरी इफेक्टिव वे, ही कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन की हेल्प से एक जो स्टूडेंट है वो इसमें लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज वेरिएशन इज सेंट्रल कंसेप्ट इन मेथोडोलॉजी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मेथोडोलॉजी में भी वेरिएशन रहते हैं और इसके अंदर मटेरियल के अंदर भी वेरिएशन रहते हैं। स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप की कंडीशंस, अलग अलग टाइप की सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिसके बेसिस वो एक लैंग्वेज को सीखता है। तो इसके बाद हम कुछ एक दो और है इसके फैक्ट वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये बिल्कुल शॉर्ट ही टॉपिक है, ज्यादा इतना डिटेल के अंदर नहीं है, इसमें अपने को अलग अलग फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ताकि किसी भी फैक्ट के बेसिस क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे सके। इसमें थ्योरी बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट वन, एनी डिवाइस which helps students is
accepted. Any device which helps student is accepted. ये अलग अलग हो सकती है according to age, interest, ability. Any device, कोई भी डिवाइस which help students, जो विद्यार्थियों की इसमें हेल्प करती है, मे बी विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग की हेल्प से, मे बी उनके कन्वर्सेशन को हम रिकॉर्ड करें, मे बी उनको कुछ वीडियो की हेल्प से हम सिखाएं, मे बी उसका प्रोनाउंसिएशन हम रिकॉर्ड करके सेकंड उसमें मिस्टेक्स अवॉइड करें। तो कोई भी डिवाइस जो उसके कम्युनिकेशन को अनेबल करती है, कम्युनिकेशन को मोटिवेट करती है और कम्युनिकेशन की थ्रू वो लैंग्वेज लर्निंग करता है, वो डिवाइस इसमें एक्सेप्टेड है, आप CLT के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट, नेक्स्ट इसमें है अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट, कि इसमें जो कम्युनिकेट करने के, किसी से बात करने के जो प्रयास है, कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी कैन स्टार्ट, वी कैन एनकरेज अ स्टूडेंट टू कम्युनिकेट। तो बिल्कुल किसी को कम्युनिकेट के लिए हम बिल्कुल बिगिनिंग से इसके अंदर मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स अबाउट CLT, CLT के अंदर जो हम यूज करते हैं और CLT के जो बेसिक है ये, इसके हेल्प से हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एग्जाम के अंदर बिल्कुल सही कर सकते हैं। इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अपने थोड़ी एक्सरसाइज भी करके देख सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप अपने रिप्लाई टाइप कर सकते हैं मैसेज के अंदर। कुछ टर्म्स, सबसे पहले आपको टर्म का पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म या थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, यदि ये टर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिकेटिव competence term was given by, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? प्लीज टाइप योर आंसर, अपने आंसर टाइप करें कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? हु कॉइन्ड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म किसने कॉइन की थी? आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। नोबडी आंसर्ड येट, अभी तक किसी का आंसर नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो टर्म थी दैट वाज कॉइन्ड बाय डेल हाइंज। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो हमने यूज की थी, वो यूज की थी जिसे अपन बोलते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ये टर्म दी गई थी नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के द्वारा ये टर्म दी गई थी। वेरी गुड, गुरप्रीत हैज आंसर्ड नोम चॉम्स्की, वेरी गुड। तो इस टाइप के जो ये आंसर है थ्योरी बेसिस, या अपन ये लिखें कि CLT is developed on the basis of a functional approach that was given by, किसके द्वारा दी गई थी वो फंक्शनल अप्रोच जिसके ऊपर हम CLT को डेवलप किया, जिसका विकसित रूप ही CLT है, वो फंक्शनल अप्रोच किसने दी गई थी? वो दी गई थी हमें जिसे कहते हैं हेनरी विडोसन एंड क्रिस्टोफर कैंडलिन।
इनके द्वारा दी गई थी। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो इसके फैक्ट्स के ऊपर बेसिस रहता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन CLT? CLT में क्या महत्वपूर्ण होता है? इसमें जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं कि CLT के अंदर क्या महत्वपूर्ण होता है। पहला मैंने लिखा प्रोनाउंसिएशन, सेकंड मैंने लिखा एक्यूरेसी, थर्ड मैंने लिखा इसके अंदर मीनिंग, एंड फोर्थ मैंने इसमें लिखा ग्रामर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन CLT? या अपन ये लिखें इन CLT एम्फेसिस इज गिवन ऑन, किसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है? प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी, मीनिंग और ग्रामर। वेरी गुड। गुरप्रीत का आंसर आ चुका है हमारे पास, मीनिंग। यू आर राइट, बिल्कुल सही है। इससे पहले भी कनीज फातिमा ने आंसर दिया है हेनरी विडोसन का, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये सब चीजें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें एक ही कंसेप्ट ज्यादा वर्क करता है CLT के अंदर, जहां तक अपन बात करते हैं सबसे बिल्कुल फोकस के अंदर जो चीज रहती है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है हमारा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कब होगा? जब जो बात हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। मीनिंग इज पैरामाउंट। एक्यूरेसी डजंट मैटर, बिल्कुल शुद्धता इसमें मैटर नहीं करती, बट फ्लुएंसी मैटर। हमारी धारा प्रवाह, जो भाषा बोलने की कला है, लैंग्वेज जो स्पोकन की कला है, दैट मैटर्स, वो मैटर करती है। तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखें। टीचर हु इज मोर एक्टिव इन CLT? CLT के अंदर ज्यादा एक्टिव कौन होता है? टीचर, स्टूडेंट, सिचुएशंस, या जिसे अपन कह दें कुछ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन ज्यादा एक्टिव रहता है? स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव कौन होंगे? स्टूडेंट एक्टिव होंगे। जो टीचर है ही जस्ट मैनेजेज द एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, लेकिन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इसलिए बी एक्टिव, आप भी एक्टिव रहें। और हमारा प्रयास ये रहे कि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं स्टडी मटेरियल टैब के अंदर, उनको आप एक बार जरूर रीड आउट कर ले। कहीं से आप CLT किसी टीचिंग मेथड की कंप्लीट, किसी के पास में BEd की बुक हो, उसमें से भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 30 नियर अबाउट अपन फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। वो मैंने आपको रिटन फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल करवाए हुए हैं स्टडी मटेरियल टैब में। उनको आप जरूर पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद ही आप जो है इस टाइप की एक्सरसाइज करें। कल अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो संडे को टेस्ट होगा उसके अंदर ये CLT, इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है और कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी जितना वर्क हमारा सैटरडे तक होगा वो हम संडे के टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। आप रेगुलर रहें चैनल के ऊपर, क्लासेस के अंदर, चाहे अपन छोटी क्लास लगाएं, लेकिन आप रेगुलर यदि रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और जो विद्यार्थी पीछे के लेक्चर में मिस हैं, तो वो स्टार्ट इंग्लिश चैनल से आप पीछे के वीडियोस काफी अपलोडेड किए पड़े हैं, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, कुछ लाइव क्लासेस भी अपलोड हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। आप उनकी हेल्प जरूर लें, क्योंकि उनको सुनने के बाद आप जब भी फ्री होते हैं उनको सुने, और उनको सुनने के बाद इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। इसी के साथ कि आपका एग्जाम जो है जो सितंबर में होना है, उसमें आप निश्चित रूप से कामयाब हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।